Hello dear students, in this video we are going to discuss about the drugs and their classification. First, mainly about the introduction of drugs. What is drug? Drugs are the chemicals with the low molecular mass. Approximate molar mass of the drug is 100 to 500 unified mass. They are nothing but the chemical with low molecular mass. When such drugs interact with the macromolecular target in our body, macromolecular targets like enzymes or receptors, mainly enzymes or receptor, drugs interact with the macromolecular target in our body and produce biological response. When such biological response are therapeutic, therapeutic means which can be useful in the treatment of disease or called as medicine. Whenever the drugs which is used in the treatment of disease are called as medicine. तो सर ऐसा भी होता है कि ड्रग ऐसे भी होते हैं कि जो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज में नहीं यूज़ होते हैं? हाँ. If the substance which is useful only for the diagnosis purpose are not called as medicine. The drug substance chemicals, normally chemicals are called as drug with the lower molecular mass, and they must need to interact with our biological macromolecular targets like enzymes or receptors and produce biological response. जब वो biological response से हम अगर किसी disease को treat करते हैं, तब when biological response is therapeutic means useful in the treatment of disease are called as medicines, and they may also be useful in the diagnosis, prevention and the treatment of disease. If such drugs are taken in a higher doses than recommended, अरे सर डेली डोज का था, एक सुबह एक शाम, लेकिन ये तो बहुत स्लो एक्शन है, हम फास्ट 2 की जगह पे 3 गोली ले ले, तो हम ये करें तो वो करें तो बार हायर डोज ले लोगे जैसे रिकमेंडेड से, then it act as a potential poisons. Yes dear students, the drug if it is taken in a higher doses than recommended, then they act as a potential poison. So one need to be very careful that while utilizing the drugs. And use of chemicals for the therapeutic effect are called as chemotherapy. What do you mean by chemotherapy? Chemicals used in the therapy. Chemical used in the treatment of or therapeutic effect are called as chemotherapy. Chemical used for the therapeutic effect is called chemotherapy. This is about the general introduction of the drugs. Now we will discuss about their classification. Drugs are mainly classified into 4 different types. Based on 4 different categories, drugs can be classified. So what are that 4 different categories? First, based on the pharmacological effect. ये जो ड्रग्स है कैटेगरी है उसके बारे में आप सब लोग को मालूम हो कि ना हो, बट डॉक्टर्स जितने भी रहते हैं हमारे आसपास, दे नॉर्मली प्रिस्क्राइब द ड्रग्स और नोन द ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स कहाँ पे जाके वो ड्रग एक्ट करेगी और किस तरीके से एक्ट करेगी. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स फॉर द डॉक्टर्स. Now, it is useful for the doctors because it provides them whole range of the drugs available for the treatment of particular problem. For example, analgesics. एनाल्जेसिक यानी पेन किलर को कहते हैं एनाल्जेसिक्स. एंटीसेप्टिक विच इज़ यूज टू किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स. तो अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं? डू वी सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज, और हम सिम्टम्स कहते हैं? जी नहीं, हम जाके कहते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है. तो डॉक्टर उसको हिसाब से ड्रग को आइडेंटिफाई करता है, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से. जैसे कि आप जाके कहोगे कि सर आई हैव ए पेन इन माय स्टमक, तो स्टमक पेन अलग है, हेडेक अलग है, बराबर, बैक पेन अलग है. तो ये सब पेन के ही टाइप है. तो यहाँ पे द ड्रग विच इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेन आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक्स. तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इस बंदे को, इस पर्टिकुलर पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देनी पड़ेगी. एनाल्जेसिक्स सिंपल टर्म में कहा जाता है पेन किलर. इन द सिंपल टर्म दे आर टर्म्ड एज ए पेन किलर. तो आपके सिम्टोम के बेस में आपको स्टमक एक है, हेडेक है,
बैक पेन है, नेक पेन है, कोई भी बॉडी पार्ट में पेन होगा तो उसके हिसाब से वो पेन रिलीविंग ड्रग्स देंगे, दैट इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक. सपोज इफ़ यू फॉल ऑन एनी सरफेस एंड यू आर सफ़र फ्रॉम एनी इंजरी, सपोज कि स्किन कट है, तो स्किन कट होगा तो वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बनेंगे. अब वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बनेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स वी नीड टू यूज़ एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स, दिस आर द टू डिफरेंट थिंग्स विच कैन बी यूज. अब एंटीबायोटिक्स कब कहते हैं? नॉर्मली द सब्सटेंस विच इज टेकन ओरली और इंट्रावेनसली, सब्सटेंस विच एंटर इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जाके एंटर इन अवर बॉडी एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, and kill or arrest the growth of microorganism. Then they are called as antibiotics. तो सर एंटीसेप्टिक्स किसको कहते हैं? एंटीसेप्टिक्स which can be applied externally on the injury. apply externally apply किया जाता है ऑन इंजरी, जो भी इंजर पार्ट है उस पर. जैसे कि आप सोफ्रामाइसिन या डेटोल अप्लाई करते हो, ना तो सोफ्रामाइसिन आप मुंह के अंदर लगाते हो, ना तो डेटोल पीते हो, बराबर. दे वी आर जस्ट अप्लाई इट ऑन द इंजरी, और एक्सटर्नली उसको अप्लाई किया जाता है ऑन द इंजर सरफेस पे, बराबर. टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आउटर सरफेस पे जो होंगे वो टू किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन दे आर कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स. तो इसकी वजह से डॉक्टर आपको दो अलग अलग कैटेगरीज के ड्रग्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं और एंटीसेप्टिक भी देते हैं. सो दिस इज कंसिडर एज ए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. तो आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन फॉर द फिजिशियंस. तो उसमें से हमारे में से जितने भी बायोलॉजी के ग्रुप के बच्चे होंगे और जो फ्यूचर में डॉक्टर्स बनने वाले हैं, उनके लिए जो केमिस्ट्री का ये पोर्शन है वो उनके आने वाली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो आप लोग को फर्स्ट क्लासिफिकेशन समझ में आ गया बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स. जो आपको सिम्टम्स है, आपको जो प्रॉब्लम है, अगर कोई जाके कहता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, खाना खाने के बाद मेरे को खट्टी डकारें आती है, बराबर, एसिडिटी है, तो वहाँ पे जो ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इज कॉल्ड एज एंटासिड्स. ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी. आप डॉक्टर को जाके सिम्टम्स बोलेंगे और वो सिम्टम को रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बेस्ड ऑन इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जाके डॉक्टर को आपको जो परेशानी है वो बोलनी होती है, तो उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन. तो ये क्या चीज़ होता है? बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, नॉर्मली जो केमिस्ट रहते हैं कि जो ड्रग्स बनाते हैं या तो जो रिसर्च करते हैं, एंड सेकेंड डॉक्टर्स, देर आर सम डॉक्टर्स विच आर प्रिस्क्राइब द ड्रग्स बेस्ड ऑन दिस एक्शन, कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से क्योर किया जाता है, तो उसके एक्शन के बेस पे उसको यूज़ किया जाता है. बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, केमिकल विच इज़ यूज टू प्रिवेंट पर्टिकुलर एक्शन और अल्टर द एक्शन इन अवर बॉडी. सपोज किसी को डायरिया है, तो डायरिया यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका टॉयलेट है वो बढ़ रहा है, तो उसको प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पे आपको ड्रग ऐसी लेने के चाहिए विच कैन स्टॉप द मोशन, बराबर. और ऑन द अदर साइड, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, देन विच improve the motion. Two different category of drugs is required. Both are the gastric disturbances, but both are alternatives. Two different category. एक में आपको मोशन जो हो रहा है ज़्यादा उसको स्टॉप करना है या तो कंट्रोल करना है, एंड द सेकेंड केस में यू नीड टू इम्प्रूव सच मोशंस. Likewise, the drug which can be provide this action is we need to identify. For example, if we suffering from the cold और रनिंग नोज, जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग चेंज इन वेदर, तो तब हम क्या करते हैं, वी यूज़ द ड्रग्स कॉल्ड एज सिट्रीजिन.
सिट्रीजिन, अब जो डॉक्टर्स है वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, एंड एलर्जी इज क्रिएटेड बाय द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी विच इज कॉल्ड एज हिस्टामाइन. So doctors, what they can do, they provide the antihistamines drugs. They provide antihistamines. These antihistamine drugs played a very important role in the treatment of cold or running nose. Yes. Which drug? Antihistamines. So that is called as based on drug action. It is based on the action of the drug on the particular biochemical process. For example, all antihistamines inhibit the action of compound histamine which causes the inflammation in our body. There are the various ways in such action of histamines can be blocked. The third category of the drugs is the classification based on the chemical structure. अब हर एक कंपनी अलग अलग केमिकल्स बनाती है, बराबर एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे ड्रग्स कंपनी बनाती है बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. बट सबके केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे वी आर द ह्यूमन बीइंग, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर फिक्स है कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हमें मालूम है कि वी हैव वन हेड, टू हैंड्स, टू लेग्स, वन बॉडी, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, टू आई, टू ईयर्स, हेयर. तो ये सब जिस तरीके से हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है, वैसे ही हर एक ड्रग्स हैज़ अ वन फिक्स केमिकल स्ट्रक्चर. तो सब फिक्स केमिकल स्ट्रक्चर होता है तो सबके सब ड्रग एक ही जैसे नहीं दिखेंगे, नहीं. अब जिसका केमिकल स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसका कॉमन रहता है, उसके अंदर हम थोड़े थोड़े अल्टर करते हैं. जैसे कि आपका और मेरा दोनों के स्किन टोन सेम नहीं है, दोनों के स्किन टोन अलग अलग होंगे, इसलिए हम अब अलग दिखते भी है. दोनों के हाइट्स अलग होंगे, बॉडी पैरामीटर्स अलग होंगे, बराबर. कोई ज़्यादा मोटा होगा, कोई पतला होगा, इस तरीके से. एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो दैट वी हैव द डिफरेंट आइडेंटिटी. कोई टू इंडिविजुअल सेम दिखते नहीं है. लाइकवाइज आउटर स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सबका कॉमन ही है. फेस, हैंड्स, लेग्स, बॉडी, बराबर, हेयर, वो सब कॉमन है. बट उसके अंदर थोड़े थोड़े अल्ट्रेशन होते हैं, इसकी वजह से वन इंडिविजुअल इज डिफर फ्रॉम अदर. लाइकवाइज यहाँ पे भी केमिकल स्ट्रक्चर में जिसके सबके कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, they are under the same class. Now in that we are doing some structure modification to increase the activity or decrease the activity of that particular drugs. For example, here you can see the structure of sulfonamides. In this sulfonamide structure, benzene के साथ NH2 group at the para position और SO2 NH group at the main position, first position. तो SO-NH ग्रुप, SO2-NH, तो जहाँ पे भी बेंजीन के साथ SO2-NH वाले होंगे वो सब सल्फोनेमाइड कैटेगरी के अंदर आएंगे. ये जितने भी ड्रग्स ऐसे होंगे जिसके पास बेंजीन के साथ SO2-NH और R ग्रुप है, वो सब सल्फोनेमाइड है. अब यहाँ पे अलग अलग पोजीशन, कोई ऑटो पोजीशन पे एमिनो अटैच करेगा, कोई कहेगा कि सर हम मेटा पे करें, तो कोई पैरा पे एमिनो, कोई मिथाइल ग्रुप अटैच करेगा, कोई सल्फोनिक एसिड देगा. तो अकॉर्डिंग टू डैट उसके अंदर अलग अलग चेंजेस आएंगे. सम पोजीशन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स एंड सम अदर डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स. और इसी के वजह से उनकी ड्रग एक्शन भी अलग अलग होती है. नॉर्मली केमिस्ट जो रहते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट एक्टिविटी और मैकेनिज्म. इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग्स. Drugs classified in this way are common structure features and often similar pharmacological activities. For example, sulfonamides. तो इन सब में इस तरीके से रहता है. And the last and the most important one is based on drug target, molecular target, on the basis of molecular target. किस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं by using the drugs. जैसे कि अगर हमें किसी भी चीज़ को बनानी है, बराबर, तो हम उसका कौन से टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कौन से मॉलिक्यूलर टारगेट को हिट करना चाहते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए. ड्रग्स विच इज़ यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया को किल करना है तो बैक्टीरिया के ऊपर उसकी सेल वॉल आती है. सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. तब जो हम बैक्टीरिया को किल करना चाहते हैं तो हम उसकी सेल वॉल पे अटैक करेंगे, और सेल वॉल जिस केमिकल्स का बना है पेप्टिडोग्लाइकन, तो आवर टारगेट इज पेप्टिडोग्लाइकन. सो वी यूज द ड्रग्स और केमिकल्स विच कैन इनहिबिट द पेप्टिडोग्लाइकन और ब्रेक द
or responsible for lysis of peptidoglycan can responsible for the lysis of cell wall, और cell wall lysis होगा तो बैक्टीरिया किल होते हैं. So this is called as molecular target. We are targeting various action. बराबर, इट मे बी द माइक्रोब्स को टारगेट करेंगे या तो हमारे बॉडी के अंदर की अलग अलग मैकेनिज्म को टारगेट करेंगे. कई बार अगर कोई आदमी है डिप्रेशन में है तो उसके बॉडी के अंदर एड्रेनालिन रिलीज़ कम हो रहा है. बराबर, उसके बॉडी में क्या हो रहा है, एड्रेनालिन रिलीज़ कम हो रहा है. अगर एड्रेनालिन जो है नॉर्मली कम हो जाता है, बराबर, तो उसके दो रीज़न होते हैं. एक तो रिलीज़ कम है या तो दूसरा इट इज़ गेट इनहिबिटेड बाय द एंजाइम्स. तो वो हम समझ के उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करवाएंगे. वी नीड टू आइडेंटिफाइड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिप्रेशन. नॉर्मली एड्रेनालिन डिक्रीज इन लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालिन इन द बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन. तो वो लेवल को हमें कंट्रोल करने के लिए हम कौन से टाइप के मॉलिक्यूलर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं. ड्रग्स विच इंटरेक्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स सच एस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर टारगेट. These are called as target molecules or the target. Drug possesses some common structural features with the same mechanism of action on targets. So these are the four. The mostly category C and D are widely used by the scientists across the world in order to achieve or produce the new drugs. The researchers are normally used the C and D. C category chemical structure में modification ला के अलग अलग drugs बनाए जाते हैं. टारगेट पे, जैसे कि आप मालूम है कि कोविड-19 जो था, तो कोविड-19 के अंदर वायरस के वजह से हुआ था, तो हम लोग ने टारगेट अचीव किए अलग अलग कि हम वायरस वैक्सीन्स बनाएंगे. तो वायरस वैक्सीन को उसके टाइप का जैसे ही वायरस हम प्रोड्यूस करेंगे, बराबर, उसमें लेस एक्शन वाला होना चाहिए, उसमें स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ला के उसकी वैक्सीन्स डेवलप किएंगे. बराबर, कैप्सोमर प्रोटीन से भी उसकी वैक्सीन बनाई जाती हैं. सो देयर आर डिफरेंट वे बाय विच वी कैन टारगेट द ड्रग्स. बराबर, कई लोग कि भाई किसी को कोविड हो चुका है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम कौन से ड्रग यूज़ करेंगे, या प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज ट्रीटमेंट. ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी डिस्कस अबाउट द ड्रग टारगेट इंटरेक्शन.